गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई एम श्याम अहमद एंड आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी, रिवर सिस्टम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। एक डिटेल्ड ओवरव्यू होगा। सो एडुलेज में आपका स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है मैं हमेशा एक कोट से स्टार्ट करता हूँ। तो आज का कोट, अ रिवर cuts through rock not because of its power but because of its persistence. Keep learning, keep growing. So, next, introduction to Indian river system. A river system consists of a main river and its tributaries with a land area of 3,287,263 kilometers squares, consisting of diverse ecosystem. India has many river systems and perennial streams. The river systems provide irrigation, drinking water, economical transportation, and many other things. So, Indian river system, वो 3,287 इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑक्यूपाई करती है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि रिवर सिस्टम क्या है। सो रिवर सिस्टम है मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज, इनका टुगेदर कॉम्बिनेशन हमें रिवर सिस्टम देता है। नेक्स्ट, जो दो देयर इम्पोर्टेंस can't बी enclosed इन अ लिस्ट, एक लिस्ट में उनकी इम्पोर्टेंस क्लोज किया नहीं जा सकता, पर फिर भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। ये तो सबको पता है। नेक्स्ट, इट्स इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट एंड इकोनॉमी। फिर बहुत सारे रिवर्स को माता भी माना जाता है ट्रेडिशंस में, सो इसलिए रिवर्स का रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस का भी है। सो टू क्लासिफाई ब्रॉडली वी हैव टू रिवर सिस्टम्स इन इंडिया, हिमालयन रिवर सिस्टम्स एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स। रिवर सिस्टम्स को डिफरेंट क्राइटेरियाज में डिवाइड किया जाता है, लेकिन broadly classifying we have these two. Next, let's start with Himalayan river system. लेकिन उससे पहले, most of the rivers in India originate from the four major watersheds in India. चार major watersheds है, and the Himalayan watershed is the source of majority of them, including the three longest rivers. So longest rivers कौन कौन से हैं इंडिया के? Ganges, Brahmaputra और Indus. These three rivers are fed by more than 5,000 glaciers. Please mark this, 5,000 glaciers से ये fed up होता है. Next, the Aravalli range in the northwest serves the origin of a few rivers such as Chambal, the Banas, and the Luni rivers. The Narmada and Tapti rivers originate from Vindhya and Satpura ranges in central India. In the peninsular India, majority of the rivers originate from the western Ghats and flow towards the Bay of Bengal, while only a few rivers flow from east to west from the eastern Ghats to the Arabian Sea. This is because of the difference in elevation of the Deccan Plateau, which slopes gently from west to east. So, पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है, and the largest of the peninsular rivers जो आपको याद रखने हैं वो है गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड कावेरी। ये डाटा प्लीज इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। 5,000 ग्लेशियर्स। नेक्स्ट, द हिमालयन रिवर सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पेरेनियल है, लॉन्ग है, डीप वैलीज है एंड हाई इरोजनल पावर है। सो whenever this river system encounters a piece of land, उसका टॉप सॉइल ये अपने साथ बहा के ले जाती है। मेजर रिवर सिस्टम्स इंक्लूड इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो इसके अंदर आते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर। सो इंडस रिवर सिस्टम, इसके अंदर भी ये सब आते हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलेज एक्सेट्रा। Next, start with the Indus River System. Indus arises from the northern slopes of the Kailash range in Tibet near the lake Mansarovar. So these things are important, though they look a bit memorizing type, but still ये important है।
कहाँ से ओरिजिनेट करता है और उसका मतलब एंडिंग पॉइंट क्या है. It has large number of tributaries in both India and Pakistan, and total length, for example, इसका total length है 2897 from the source to point near Karachi, where it falls into the Arabian Sea, out of which approximately 700 kilometers lies in India. So ये fact based question की तरह आ सकता है. Next, it enters the Indian territory in Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir में ये enter होता है by forming a picturesque gorge. So ये scenery जब हम यहाँ जाते हैं. So next, in the Kashmir region, it joins with many tributaries. कश्मीर में बहुत सारे tributaries के साथ ये join होती है और उनका name भी आपके लिए important है. Memorize them: Jaskar, the Shyok, the Nubra and the Hansa. It flows between, कहाँ से flow करती है मतलब कहाँ के बीच flow करती है, लद्दाख range and the Jaskar range at Leh. Next, ये it crosses the Himalayas through 5181-meter deep gorge near Attock, which is lying north of Nanga Parbat. The major tributaries of Indus rivers in India are Jhelum, Ravi, Chenab, Beas and Satluj. So ये Nanga Parbat I believe एक traditionally important site भी है, तो please remember that also. Next, Brahmaputra River System. The Brahmaputra River System also originates from the Mansarovar Lake. It is 3848 kilometer long, a little longer than Indus River, so ये उससे भी ज़्यादा लंबा है. Most of its course lies outside India, so इसका ज़्यादातर हिस्सा इंडिया के बाहर है. It flows parallel to the Himalayas in eastward direction, so eastward direction के parallelly flow करता है. And when it reaches Namcha Barwa, it takes a U-turn around it and enters India in the state of Arunachal Pradesh. Here it is known as the Dihang River. In India, it flows through the states of Arunachal Pradesh and Assam. So India में इन दोनों states को आपको याद रखने हैं, and is connected by several tributaries, and the Brahmaputra has a braided channel through most of its length in Assam. The river is known as Sangpo in Tibet, so Sangpo I believe. It receives less volume of water and has less silt in the Tibet region, but in India it passes through a region of heavy precipitation and as such carries huge amount of water during rainfall, significant amount of silt also. So though ये river का major portion India के बाहर है, फिर भी major precipitation ये India से ही फेस करके जाता है. In rainy seasons, this is far more. The Ganga River System. The Ganga originates as the Bhagirathi from the Gangotri Glacier before it reaches Dev Prayag in the Gaharwal division. The Mandakini, Pindar, Thauling Ganga and the Bhishen Ganga rivers, आपको याद रखना है ये नेम, into the Alaknanda in the Pheling drain into the Bhagirathi. Don't worry, I will also give a video of memorizing techniques soon. और आपको मैंने पहले ही बताया, प्लीज़ डोंट रेकमेंड एनी न्यू बुक इन दिस टाइम, ओके. सो जितने बुक्स है और ये नोट्स प्लीज़ उन्हें ही फोकस रखिए और खुद के नोट्स. द वाटर फ्रॉम बोथ भागीरथी एंड अलकनंदा फ्लोज इन द नेम ऑफ गंगा एट देव प्रयाग. सो नेक्स्ट पार्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच प्रयाग. ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. पंच, आई बिलीव यू नो दैट पंच रेफर्स टू 5. सो 5 प्रयाग्स का मतलब इम्पोर्टेंस है. फर्स्ट इज विष्णु प्रयाग, वेयर द रिवर अलकनंदा मीट्स रिवर थावली गंगा. नंद प्रयाग, रिवर अलकनंदा मीट्स नंदाकिनी. कर्ण प्रयाग, अलकनंदा मीट्स रिवर पिंदर. रुद्र प्रयाग, अलकनंदा मीट्स मंदाकिनी. देव प्रयाग, अलकनंदा मीट्स भागीरथी, दैट इज गंगा. सो ये अलकनंदा किन किन रिवर्स से मिलती है, किस किस पॉइंट्स में, उस पॉइंट्स को हम डिफरेंट प्रयाग्स के नाम से जानते हैं. ये
आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव. द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड यमुना आर principal tributaries of Ganga are Yamuna, Damodar, Saptakoshi, Ramganga, Gomati, Ganghara, Khagaras, I'm sorry, and San. The river, after traveling a distance of 2525 kilometers from its source, meets the Bay of Bengal. So, next, the Himalayan River System previous year question. So देखते हैं कौन कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस रिवर सिस्टम के ऊपर. फर्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स की तरफ से देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट पेयर्स: बराक रिवर मिजोरम, लोहित रिवर अरुणाचल प्रदेश, साबरी रिवर ओडिशा. हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच? सो आपको लग रहा होगा कि मे बी ऑल आर रॉन्ग, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं. बट आई लेट मी से यू द करेक्ट आंसर इज ओनली टू. ये दोनों करेक्ट है, फर्स्ट इज रॉन्ग, इट शुड नॉट बी मिजोरम. Which one of the following statements best describe the term drainage basin of a river? So drainage basin क्या है? Basically एक landform जहाँ एक river की majority water आगे slide करती है या फिर strike करती है. The answer to this will however be here the region from which a river collects its water. जहाँ उसका maximum water है वहीं से तो अपना water लेगा ना river. So the correct answer to this is A. Next, with reference to river Tista, consider the following statements. So यहाँ तीन statements है. Tista river origins from Sikkim and flows into Bangladesh before merging with Brahmaputra. It's a tributary of Ganga and so on. So इसका answer let me say you, it is 1 and 3. So 1 and 3 है इसका answer. Consider the following pairs. River flows into Mekong, Andaman Sea, Thames, Erie. Actually, I believe this should not be an option or pair, but फिर भी let's see it. इसका आंसर होना चाहिए B, 3 and 4 only. Next, UPSC Mains के question. Explain the causes and consequences of frequent floods in Himalayan river systems. Aggressive measures. आप लोग जब ये देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि UPSC recently मेंस में रिवर सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स. सो इन मेंस टाइम प्लीज़ फोकस हाईली ऑन दिस रिवर सिस्टम्स. अब क्योंकि प्रीलिम्स पास आ रहे हैं तो ये बाद में देख लीजिएगा, नॉट बाद में देख लीजिएगा बट let's leave it for the time being. Next, the Peninsular River System. Characteristics क्या क्या है? Seasonal flow. Unlike the Himalayan river systems which are perennial due to glacier melt, peninsular rivers depend primarily on monsoon. As a result, their flow fluctuates significantly between wet and dry seasons. Next, ये short होते हैं और shallow होते हैं. नेक्स्ट, इनकी टेरेन हार्ड रॉक्स से बनी होती है, हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स, लिमिटिंग देयर meandering capabilities. नेक्स्ट, डेल्टास वर्सेस एस्चुरीज. ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एम्प्टी इनटू बे ऑफ बंगाल, जो रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं इस रिवर सिस्टम के. नेक्स्ट, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देते हैं, फॉर्मिंग एस्चुरीज इंस्टेड ऑफ डेल्टास, लेकिन ये डेल्टास फॉर्म करते हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. Next, limited navigability. Due to their non-perennial nature, waterfall and rapids, navigation is difficult. Yeah, I'm sorry, here there should not have been this comma. Navigation is difficult. Next, hydroelectric potential. Several major dams such as Sardar Sarovar, Nagarjuna Sagar, and Hirakud harness these rivers for irrigation and hydroelectric power. So they are a source of hydroelectricity generation for India. Next, east flowing rivers which ultimately discharge their water into Bay of Bengal, they form fertile deltas. So ये fertile deltas form करती है और इनके कुछ rivers जिनकी important contributions और characteristics मैंने यहाँ दे दी है. गोदावरी river जिसको हम हिंदी में दक्षिण गंगा भी कहते हैं, इसका length 1465
Origin Nasik, Maharashtra. Tributaries Indravati, Manjira, Sabri, Pranhita, Purna. States covered Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Chhattisgarh. Significance वो तो बता ही दिया, दक्षिण गंगा है, डेल्टा फॉर्मेशन हेल्प करती है. नेक्स्ट कृष्णा रिवर, इनकी भी सिमिलर डेटास मैंने दे दी है. इसका सिग्निफिकेंस है कि ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. फर्स्ट कौन सा है? गोदावरी रिवर. नेक्स्ट महानदी रिवर, ये है 858 किलोमीटर्स की, तो उससे छोटी है. इसका मेजर डैम जो है हमें हिराकुद डैम देखने को मिला है, एंड दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम्स इन द एंटायर वर्ल्ड, but it frequently causes floods due to heavy monsoon rains. So it is important to know that it causes floods. नेक्स्ट कावेरी रिवर, ये उससे भी छोटा है, 800 किलोमीटर की लेंथ है इसकी. एंड ट्रिब्यूटरीज है काबिनी, भावनी, हेमावती, नोयर. सो इसका सिग्निफिकेंस है प्रोवाइड्स इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉर्म्स द फर्टाइल कावेरी डेल्टा ऑल्सो नोन एज राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु. सिंस ये इम्पॉर्टेंट है मैं इसे मार्क कर देता हूँ कि इसे हम एक और नाम से जानते हैं, राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में जानते हैं अब. वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है नर्मदा रिवर, देन ताप्ती रिवर जिसे हम तापी रिवर भी कहते हैं, साबरमती रिवर, माही रिवर एंड पेरियार रिवर. यू नीड टू नो दिस थिंग कि ये रिवर्स की लेंथ एज कंपेयर टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थोड़ी छोटी है, क्योंकि ये डेल्टास फॉर्म नहीं करते, ये फास्ट फ्लो में चलते हैं हमेशा. नर्मदा रिवर लेंथ सिमिलर आपको पता होगा, 1312 किलोमीटर्स. तवा, हिरान और सांग. ओरिजिन कहाँ से होता है? अमरकंटक प्लेटू, मध्य प्रदेश से. स्टेट्स कौन से कवर करते हैं ये मैंने लिख दिया. सो here we have the longest river नर्मदा. उसके बाद आता है ताप्ती, एंड उसके बाद आता है माही रिवर, उसके बाद आता है साबरमती रिवर, एंड देन कम्स द पेरियार रिवर. डोंट वरी इफ यू आर नॉट एबल टू राइट दिस थिंग्स, आई विल सेंड द पीडीएफ in the link that you will get in the description below. So इनके भी significance है hydroelectricity projects में, and it is important to know that. major water disputes जो हमें जानने चाहिए, इसके regarding questions बहुत बार आए एग्जाम में. कावेरी डिस्प्यूट जहाँ हुआ था तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटका. कृष्णा डिस्प्यूट कृष्णा रिवर के अगेंस्ट, ये हुआ था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के बीच. महानदी डिस्प्यूट महानदी रिवर के रिगार्डिंग ये हुआ था ओडिशा एंड छत्तीसगढ़. एंड द एंड गोदावरी डिस्प्यूट जो हुआ था आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बीच में. लेट्स पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिवर ऑरिजिन. नर्मदा, अमरकंटक, कृष्णा, महाबलेश्वर, महानदी, सिहावा, कावेरी, ब्रह्मगिरी. तो आपको क्या लगता है कि ये मैचिंग्स करेक्ट है कि नहीं? द आंसर इज गिवन हियर, 1, 2, 3 एंड 4 सभी करेक्ट है. नेक्स्ट यूपीएससी सीएससी 2020 में आया ये, with reference to water availability in rivers of India, consider the following statement. आजकल ये statement type question बहुत आते रहते हैं. The Ganga has the highest annual flow among all rivers in India, longest among peninsular river, largest basin area. So इसका answer obviously लिखा है यहाँ 1 and 2 only, that is option A. 2017 में भी आया है, 2014 में भी आया है, लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ भी सेम ट्रेंड है. प्रीलिम्स नॉट सेम, आई वुड से ऑपोजिट ट्रेंड है, क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एज कम्पेयर टू मेंस. सो यहाँ आपको उल्टा स्टेप लेना होगा. मेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, word limit 150, 250, 200, 200. So you know to know the theory very well. क्योंकि अभी प्रीलिम्स पास आ रहे हैं, सो मैं प्रीलिम्स फोकस्ड वीडियो बना रहा हूँ. आप मेंस के टाइम में मेंस फोकस वीडियो डालता रहूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया हैज डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर्ड टू हिमालयन रिवर. डिस्कस दीज कैरेक्टरिस्टिक विद suitable examples. So you need to know the theory very well. And next,
फीचर्स क्या है, मतलब आई विल डिफ्रेंशिएट नाउ हिमालयन रिवर सिस्टम फ्रॉम द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. सोर्स ये हिमालय से ओरिजिनेट होती है, मोस्टली फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड स्लो फील्ड्स. पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, सेंट्रल हाईलैंड्स और स्मॉल प्लेटूज से. नेक्स्ट फ्लो टाइप, इसका फ्लो टाइप पेरिनियल है, लेकिन पेनिनसुलर का फ्लो टाइप सीजनल है, मानसून रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट है. लेंथ एंड कोर्स, हिमालयन रिवर सिस्टम आप लोगों ने देख भी लिया कि दिस इज लॉन्गर विद एक्सटेंसिव ड्रेनेज बेसिन्स, और ये शॉर्टर है एज कंपेयर टू दैम. नेक्स्ट मेजर रिवर्स हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. पेनिनसुलर के हैं गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, नर्मदा, तापी, पेरियार, Sabarmati and Mahi. I have not mentioned this two in my previous slide, so I believe these two are not much sought after, so मैंने ये include नहीं किया है, पर फिर भी you can go through it. River course features like gorges, waterfalls, oxbow lake, meanders and floodplain, ये सब हमें हिमालयन रिवर सिस्टम में देखने को मिलता है. नेक्स्ट पेनिनसुलर में हमें फीचर्स देखने को मिलता है लाइक वाटरफॉल्स, रैपिड्स एंड ब्रॉड वैली. सो यहाँ इतनी वैरायटी देखने को नहीं मिलती, मतलब ऑक्सबो लेक्स एंड फ्लड प्लेन्स ये सब देखने को नहीं मिलता. नेविगेबिलिटी, हिमालयन रिवर सिस्टम आर मोर सुइटेबल फॉर नेविगेशन ड्यू टू कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई, लेकिन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आर नॉट दैट सुइटेबल फॉर नेविगेशन. आजकल तो रिवर्स को नेविगेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, फिर भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो. नेक्स्ट आंसरिंग टिप्स, प्रीलिम्स में प्लीज़ फोकस ऑन ऑरिजिन, ट्रिब्यूटरीज, ड्रेनेज पैटर्न्स एंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू हिमालयन रिवर्स. मैंने फिर से कह दिया कि प्रीलिम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन हिमालयन रिवर्स से आ रहे हैं एज कम्पेयर टू मेंस. मेंस के लिए मैं ऑब्वियसली वीडियो डाल दूंगा. एंड जियोग्राफी इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लेसेस, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. सो यूपीएससी में मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता रहता है. सो पीवाईक्यूज जो मैं दे रहा हूँ और जो आप लोग ऑब्वियसली कर रहे होंगे उनसे फोकस रहिए, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम नाउ, इट्स टाइम टू वर्क सीरियसली. और feel free to contact me wherever you want. I have my links on my channel. Thank you and have a great day ahead. Prepare well.